Okay. Screen is visible. Screen is visible or not? Please. Yes. Fine. So बीच में अगर कहीं नेटवर्क इशू होता है तो आप वो ग्रुप पे आप मैसेज कर दें सो दैट आई कैन मैनेज. So let's start with diode circuits. Suppose you are having now, कल हमने वो सर्किट सॉल्व किए थे when we are having two diodes in the circuit. Now let's take three diodes in circuit. And this is the example. This is one example. 1 kilo ohm resistance is connected to ground. We are interested in output voltage, and this potential is 1 volt, 2 volt and 3 volt. How we can solve? And this diode D1, D2 and D3 are ideal diode. What we can say? D1, D2 and D3 are ideal diode. D1, D2, D3 are ideal diode. So this connection is also known as common cathode connection. The cathode of all these three diodes are common. That's why this is known as common cathode connection. This connection is known as common cathode connection. So how to approach this circuit when you are having more than two diodes in the circuit? So just replace the diodes by open circuit. So we have applied open circuit test. First, second, third, all these diodes are connected, and this potential is 1 volt. Sorry, this potential is 3 volt, 2 volt and 1 volt. So what I can say that there is no current in the circuit, so this whole line is available at 0 because this potential is also 0. No current in the circuit, no closed loop, no current. This potential is 0 means this whole line is available at 0 volt. ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, and this is also 0. अब जरा देखें, can I say this potential is Vp? This potential is Vn, anode minus cathode potential for all diodes. So what we can say, the value of Vp minus Vn, Vp minus Vn for diode D3, open circuited voltage across diode D3 is 3 volt. Vp minus Vn for diode D2 is 2 minus 0, 2 volt, and Vp minus Vn for diode D1 is 1 volt. So open circuit voltage for diode D3 is highest. So what I can say,
डायोड D3 विल कंडक्ट, और डायोड D3 कंडक्ट करेगा तो वी कैन रिप्लेस इट बाय शॉर्ट सर्किट. सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन फ्रॉम दिस टेस्ट? Diode D3 will conduct, and if diode D3 will conduct, you can add a short circuit here. So let's add a short circuit here. और जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट ऐड किया, what you can say, you are having one closed loop. So this whole line is available now at 3 volt because this is short circuited with 3 volt. So value of current is 3 minus 0 divided by 1k is I, and the value of current is equivalent to 3 milliampere. And now we will apply the open circuit test for this remaining two diode. और remaining two diode के लिए अगर open circuit आप test लगाएंगे तो क्या होगा? What you can say? You can say कि Vp minus Vn is negative for this because 2 minus 3 and this is 1 minus 3. जब हाईएस्ट पोटेंशियल वाला डायोड ऑन हो गया तो बचे हुए डायोड को क्या करेगा? कभी ऑन नहीं होने देगा. तो ये जो बचे हुए दो डायोड है ये कैसे रहने वाले हैं? हमेशा ऑफ रहने वाले हैं. तो कॉमन कैथोड कनेक्शन में, है ना, अगर आपके पास मल्टीपल डायोड है और कॉमन कैथोड कनेक्शन है तो वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसके एनोड पे हाईएस्ट पोटेंशियल हो, है ना. इन कॉमन कैथोड कनेक्शन, in common cathode connection, this is common cathode connection, all cathodes are tied together. The diode having highest anode voltage will conduct. कौन कंडक्ट करेगा? जिसके एनोड पे हाईएस्ट वोल्टेज होगा, दैट डायोड विल कंडक्ट फर्स्ट, एंड दिस कनेक्शन इज नोन एज कॉमन कैथोड कनेक्शन, है ना. पिछली बार इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया था एनालॉग सर्किट में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, उसको भी हम देखेंगे, बट दिस इज द आइडिया. Now let's take one more example, and this example is having example number 2 for the day, common anode connection. When the diodes having common anode, so this is the idea for the circuit. Five volt, 1 kilo ohm resistance, and this potential is 3 volt, 2 volt and 1 volt. I am interested in this current I, and this is diode D1, D2 and D3, है ना. आप इसको ट्राई करें और बताएं विच डायोड विल कंडक्ट. और आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज एंड करंट. दिस इज एनोड कनेक्शन. दिस पार्ट makes this configuration common anode configuration. Find the value I and V output. D1, D2, D3 are आइडियल डायोड है तीनों, तो वैल्यू पता करें आप, है ना.
कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V एंड I? 4 milliampere. Okay. Four milliampere? Yes, very good. 4 milliampere is correct answer. है ना, बड़ा आसान टेस्ट है. द डायोड हैविंग हाईएस्ट ओपन सर्किट वोल्टेज विल कंडक्ट फर्स्ट. अगर आपने सारे डायोड को ओपन कर दिया, है ना, इफ diodes by open circuit, what we can say? We can say replace this by open, this by open circuit, this by open circuit. अगर ऐसा किया है आपने, तो करंट इन द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू जीरो. सारे पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो. सो यू कैन हैव द होल लाइन एट 5 वोल्ट. ये पूरा लाइन कितने पे होगा? दिस होल लाइन इज अवेलेबल एज 5 वोल्ट. तो ये भी होगा 5 वोल्ट पे, ये भी होगा 5 वोल्ट पे, और ये भी कितने पे होगा? 5 वोल्ट पे. अब देखें सारे डायोड का डायरेक्शन कैसा था. दिस इज द वे डायोड इज कनेक्टेड इन द सर्किट. तो D3 के लिए Vp माइनस Vn ओपन सर्किट फॉर डायोड D3 is equivalent to 3 minus 5 minus 3, 2 volt. और Vp minus Vn open circuit for diode D2 is 5 minus 2 is 3 volt. And Vp minus Vn open circuited voltage for diode D1 is equivalent to 4 volt. Which will conduct first? What I can say, the diode D1 will conduct first. और ये कंडक्ट करेगा तो यहां का पोटेंशियल कितना आया? सॉरी, ये कंडक्ट करेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आया 1 वोल्ट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटेड लाइन. और 1 वोल्ट आया तो व्हाट आई कैन से, द V आउटपुट फॉर द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट? 5 minus 1 divided by 1K. So I can say the value of current is equivalent to 4 milliampere in the circuit. सर्किट का करंट कितना होगा? 4 milliampere. और अगर यहां 1 वोल्ट आया तो अगेन ये बाकी और किसी डायोड को ऑन नहीं होने देगा. दोनों को क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा. ओपन सर्किटेड वोल्टेज तो रिवर्स बायस में चले जाएंगे. तो दिस इज कॉमन एनोड कनेक्शन. और कॉमन एनोड कनेक्शन में कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? कॉमन एनोड कनेक्शन में वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसके लिए Vp माइनस Vn का वैल्यू क्या हो? Vp माइनस Vn वैल्यू इज हाईएस्ट, है ना. ये मैं ऐसा बोलूं, कॉमन एनोड कनेक्शन में वो कंडक्ट करेगा जिसके लिए कैथोड का वोल्टेज मिनिमम हो. मिनिमम कैथोड का जिसका वोल्टेज होगा वो कंडक्ट करेगा. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पिछली बार आया है गेट में, गेट 2020 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, जरा देखें. वी आर हैविंग दिस अरेंजमेंट, है ना. वी आर हैविंग दिस अरेंजमेंट. दिस इज लेट्स से एग्जांपल गेट and this is the question. A 12 volt इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें. 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, this is short circuited, then 3 kilo ohm, then 3 diodes,
this is 15 volt, then 10 volt, then 5 volt. We are interested in this current Ix. I hope this is visible. Ix, and all diodes are ideal, है ना? All diodes are ideal. करें इसको जरा, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा शायद उसी से कुछ रिलेटेड है, देखें. थ्री मिली एम्पियर. ओके, 3 मिली एम्पियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे. द आंसर इज है ना. क्या देख सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट विच वी हैव लर्नड हियर, कि ये कौन सा कनेक्शन है. दिस इज कॉमन कैथोड कनेक्शन. तो कॉमन कैथोड कनेक्शन में कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा जिसके एनोड पे हाईएस्ट वोल्टेज होगा. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस डायोड विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट और बाकी किसी को ऑन नहीं होने देगा. करेक्ट. नाउ ये देखो सिमिलर अरेंजमेंट है. 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट एनोड. तो ये कौन सा है, कॉमन एनोड. और कॉमन एनोड में कौन कंडक्ट करता है, जिसके कैथोड पे लीस्ट वोल्टेज हो. सो यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना. तो हमारे पास तो बड़ा सिंपल नेटवर्क हो गया. मल्टीपल डायोड लगाने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनता. नाउ यू आर हैविंग हायर पोटेंशियल 15 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाय 5k इक्वल टू आई. तो आई इक्वल टू व्हाट, 3 मिली एम्पियर, जो कि मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट बताया है. तो ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ जो वोल्टेज था वो 6 था. तो 6 होने से यहाँ आंसर कितना आया था, 1.8 मिली एम्पियर. बट मैंने कितना कर दिया उसको, मैंने उसको कर दिया 0 वोल्ट. सो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सो व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3 मिली एम्पियर इज करेक्ट आंसर. कि ये कॉमन कैथोड कनेक्शन है. कॉमन कैथोड कनेक्शन है तो विच डायोड विल कंडक्ट फर्स्ट, हैविंग हाईएस्ट एनोड वोल्टेज विल कंडक्ट फर्स्ट, एंड दिस कनेक्शन इज नोन एज कॉमन एनोड कनेक्शन. मान लो ये कॉमन एनोड कॉमन कैथोड नहीं होते तो क्या करते, तो भी क्या करते, वी आर हैविंग द मेथड ओपन सर्किटेड वोल्टेज कैलकुलेट करो और वी कैन कैलकुलेट इट, है ना. जिसके अक्रॉस हाईएस्ट होगा दैट विल कंडक्ट फर्स्ट. सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. चलो आगे देखते हैं. नाउ द सेकेंड मॉडल टू एनालाइज द डायोड सर्किट इज नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल. कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल. एंड व्हाट दिस मॉडल सेज, सपोज this is your diode. This is Vp
दिस इज Vn, है ना. क्या करें आप, अगेन द आइडिया इज सेम एंड इट इज सेड दैट दिस पोटेंशियल इज लेट्स से कैपिटल VD, है ना. कि डायोड, या मैं टू बी स्पेसिफिक वी यूज सिलिकॉन डायोड, तो मैं इसको लिख देता हूं कितना, 0.7. जितना दिया है उतना लेना है. तो अब जो आपके पास डिसीजन लेने का रूल था वो 0.7 से शिफ्ट हो जाएगा. व्हाट वी विल से, VP माइनस सर्किटेड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तो यू विल कंसीडर डायोड एज ए ऑन डायोड. And what is meaning of on diode? You can replace your diode. If your diode is this, तो डायोड करंट तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ID. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिप्लेस इट बाय अ बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट. दिस इज बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट. और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ID. और ध्यान रखें, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है मतलब ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर नहीं करेगा, सर्किट को पावर देगा नहीं, लेगा, है ना. 0.7 इंटू ID वॉट, इतना पावर ये लेगा सर्किट से, है ना. ध्यान रखें, ये डायोड कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा सर्किट को. तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर Vp माइनस Vn का वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा है, एंड 0.7 वोल्ट जो EC वाले लोग हैं उन्होंने EDC में पढ़ा होगा, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल. EDC में हम पढ़ेंगे इसको. बट यस, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.7 you can replace it by a battery of 0.7 volt. And this is the first part. What is second part? The second part is whenever Vp minus Vn open circuited potential is less than or equal to 0.7, the diode is considered as a off, है ना. And in this condition you can replace your diode by ओपन सर्किटेड डायोड. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किटेड डायोड, है ना. सो दिस मॉडल इज नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, है ना. आइडियल डायोड के बाद ये ऐसा एक मॉडल है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं. वी कैन ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल. लेट्स से this line represents the current. और ध्यान रखें, डायोड मींस करंट इन वन डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज P2N, है ना. केवल जीनर में करंट हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको भी हम देखेंगे. बट यस, करंट इन द डायोड इज P2N, है ना. ब्रेकडाउन में थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में. एंड व्हाट इज दिस, द horizontal axis represents Vp minus Vn ओपन सर्किटेड वोल्टेज. हम उन्हीं वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जो हमारे लिए सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट वी कैन से कि लेस देन 0.7 वोल्ट, लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन लेस देन 0.7 वोल्ट, दिस वैल्यू इज 0.7. सो लेस देन 0.7 वोल्ट, नो करंट इन द सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा. एंड at 0.7 or beyond 0.7 this will act as a short circuit. So what I can say, this is the portion where Vp minus Vn open circuited voltage is less than 0.7, or in this whole region you can replace your diode by open circuit. इस पूरे रीजन में आप डायोड को कैसे बता सकते हैं, ओपन सर्किट से. आफ्टर दैट this is the reason where Vp minus Vn greater than 0.7, you can replace it by a battery of
0.7 volt. So this is the characteristics for the constant voltage drop model, है ना. अगर आप डायोड को सर्किट में यूज कर रहे हैं तो we are interested in VI characteristics. तो उसका VI characteristic कैसा है, ये characteristics है. और करंट ध्यान रखें, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होगा, P to N फ्लो होगा, बाकी और कहीं करंट फ्लो नहीं होता. ध्यान रखें, करंट इज ऑलवेज फ्रॉम P to N रीजन. तो जरा देखते हैं कि हाउ दिस वर्क्स. आई होप कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप आपको समझ में आया. कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप क्लियर है? एक बार हाँ या ना लिख के बता दे तो हम इस पे भी स्टार्ट करते हैं. यस, वेरी गुड. यस, चलो बहुत अच्छे. अगर ऐसा है सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. एंड व्हाट प्रॉब्लम सेज, नाउ वी आर हैविंग द आइडिया ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप. और कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप का आइडिया क्या बोलता है, जरा देखें. अगेन दिस इज वन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन. फिर एक अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं. द इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम इज दिस. दिस इज a 2 volt line and a diode is connected to this line. Then a 500 ohm resistance is connected to this. Then a battery is connected to this having value VDC divided by 2. This is the value of battery. और लिखा है कि there will be no forward current in the, इस सर्किट में कोई फॉरवर्ड करंट नहीं है. देन द वोल्टेज, देन VDC is greater than. VDC का वैल्यू किससे ज्यादा हो कि सर्किट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो. और ये बोला है कि दिस इज whenever this diode is on the potential drop is 0.7 volt. कि जब भी डायोड ऑन होता है तो मिनिमम इसके एनोड माइनस कैथोड का जो ओपन सर्किटेड पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, 0.7 वोल्ट. एंड दिस आर द ऑप्शंस. ऑप्शंस आर 0.7 volt. B option is 1.3 volt. Then we are having one more option, 1.8 volt. And D option is 2.6 volt. है ना. So we are interested in this question. अब कैसे किया जाए. अगेन जब भी आपको डायोड ऑन करवाना हो तो हाउ टू प्रोसीड. डायोड ऑन करवाने के लिए जस्ट कैलकुलेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल. तो आपने डायोड को रिप्लेस किया ओपन सर्किट से और देखा कि दिस पोर्शन इज VP, this portion is VN. So what we can say, what is condition, VP minus VN, open circuited voltage for diode must be greater than 0.7. ये किससे ज्यादा होना चाहिए, 0.7 से ज्यादा होना चाहिए. चलो देखें. What is VP? You can say the VP is 2 volt. What is VN? Due to open circuited volt connection, the potential drop across 500 ohm is 0. So VDC is applied. So this is minus of VDC divided by 2 and this is greater than 0.7 volt. तो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. लेकिन मुझे तो अगर चाहिए रिवर्स करंट जीरो, सॉरी फॉरवर्ड करंट जीरो. फॉरवर्ड करंट जीरो मतलब रिवर्स बायस्ड. तो मुझे साइन कौन सा यूज करना पड़ेगा,
ये ऑन का कंडीशन है, तो ये किसका कंडीशन है? ये है ऑफ का कंडीशन, कि इसका वैल्यू कितना हो? लेस देन 0.7. एंड इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0.7, व्हाट आई कैन से? VDC divided by 2 minus 2 should be greater than or equal to minus of 0.7. You can say VDC divided by 2 should be greater than or equal to 1.3 volt, or VDC should be greater than or equal to 2.6 volt. So what is answer for the question? 2.6 वोल्ट. कि अगर VDC का वोल्टेज 2.6 वोल्ट हुआ या उससे ज्यादा हुआ, तो ये डायोड कैसे एक्ट करेगा? रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस में करंट का वैल्यू कितना होगा? द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0. सो दिस इज द आइडिया फॉर द नो कंडक्शन कंडीशन इन द सर्किट. कि वो आइडिया जहां पे सर्किट में कोई कंडक्शन नहीं होगा, वो आइडिया कैसा है? कि VDC एटलीस्ट नीडेड टू बी 2.6 वोल्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ये क्लियर हुआ क्या? देखें जरा एक बार. कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या लिख दें उस पर डाउट है या नहीं है. ये क्लियर है? द क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप क्लियर? यस क्लियर. यस. चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा देता हूं मैं, आप उसको थोड़ा ट्राई करें. चलो थैंक यू. नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज the question is this. Yes. Based on constant voltage drop, it is given that for diode D1 and D2, V on is equivalent to 0.7 volt. And this is the question. This is 5K. This is 10K. Then we are having one diode. और अभी भी रूल वही है, पहले जो आप 0 के लिए करते थे, अगर 2 डायोड कनेक्शन है तो आप वो 0.7 के लिए करने लगेंगे, है ना. दिस इज VA VB, है ना. थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर देगा, है ना. वी कैन टेक वन मोर डायोड. दिस डायोड इज D1. This is 5 kilo ohm and this is 10 kilo ohm. What I can say, this potential, I am interested in this voltage. The potential drop across 10K. 10K के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये पूछा है आपसे इन दिस सर्किट. और ये है डायोड D2. आपको क्या पता लगाना पड़ेगा? आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग. और जैसे ही आपको ये पता चला कि कितने डायोड कंडक्ट करते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, है ना. सो ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना. इट्स गुड क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल. उसके बाद हम गेट में जो आए हैं उन प्रॉब्लम्स को करते हैं, वो शायद इजी हैं बहुत.
ओके, 9.533, 9.533 is correct. है ना? कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए जरा देखें। मैं एक काम करता हूँ, इसका कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैंने क्वेश्चन का एक कॉपी बना लिया और मुझे टेस्ट करना है सबसे पहले तो कि हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग। तो हटा देता हूँ इन सभी को, ठीक है। हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग, और उसके लिए क्या किया जाए, दोनों डायोड को हटा दिया जाए और यहां मार्क कर लिया जाए Vp and this is Vn, और यहां भी सेम, remove this diode because we are applying the open circuit test. And what we can say, this is our Vp and this is Vp1, Vn1, this is Vp2 and Vn2, ठीक है। अब सर्किट को ऐसा लिखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा कि सर्किट में इस साइड तो कोई क्लोज लूप नहीं बनता, इन दिस साइड देयर विल बी नो करंट इन दिस साइड बिकॉज ओपन सर्किटेड वोल्टेज। अगर कोई करंट नहीं बनता तो व्हाट वी कैन से, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 किलो ओम इज जीरो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, तो Vp1 इज इक्वल टू 15 वोल्ट, और Vn1 कितने पे होगा, Vn इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। दूसरे में देखें जरा आप कि करंट कितना होगा, 15 वोल्ट डिवाइड, क्लोज लूप है, 15 डिवाइडेड बाय 15 इज 1 मिली एम्पियर, 15 minus 0 divided by 15k, so what I can say, the current in the circuit is equivalent to 1 milliampere, और 1 milliampere current flow हुआ तो this potential drop is 10 volt, so total applied potential is 15 volt, 10 volt is potential drop, so what is value of Vp2, 5 volt। तो हमने क्या देखा कि इनिशियली Vp माइनस Vn का वैल्यू फॉर डायोड D1 इज, है ना, लेट्स एनालाइज नाउ। Vp माइनस Vn फॉर डायोड D1 is equivalent to 15 minus 0, 15 volt, and Vp minus Vn for diode D2 is equivalent to how many volts, 5 minus 0, 5 volt। कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा पहले, दिस डायोड विल कंडक्ट फर्स्ट, तो मैंने यहां लगा दिया एक शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट लगाया। अब मैं चेक करूंगा किसके लिए, नाउ आई विल चेक कंडक्ट कर लिया, तो हटा देते सारे नंबर्स को। नाउ दिस इज योर सर्किट अगेन, यहां अब दोनों तरफ क्लोज लूप बनता है, तो व्हाट आई कैन से, ये पोटेंशियल चेंज नहीं होगा वोल्ट, और ये पोटेंशियल कितना 15 डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ आया 10,
15 डिवाइडेड बाय 15 मतलब यहां देखें ध्यान से कि यहां भी करंट 1 मिली एम्पियर जाने वाला है और 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 यहां भी करंट कितना जाने वाला है 1 मिली एम्पियर बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 वोल्ट 5 किलो ओम इज 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस कितना होगा 10 वोल्ट तो अप्लाई किया था आपने 15 वोल्ट 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो यहाँ आया 10 वोल्ट और 15 वोल्ट अप्लाई किया था 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो यहाँ आया 5 वोल्ट नाउ वीपी माइनस वीएन वैल्यू Vp minus Vn value for diode D2 is minus 5. Minus 5 means this will not conduct. ये क्या करेगा ये कंडक्ट नहीं करेगा है ना कंडक्ट नहीं करेगा तो आपसे क्या पूछा था आपसे ये पूछा था कि ओके वी कैन check this by short circuit but no here we are having a potential of 0.7 volt ठीक है बट वी कैन चेक कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी तो 0.7 वोल्ट पोटेंशियल है तो अब मुझे निकालना है वैल्यू किसका आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ वी आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे तो वी आउटपुट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आई कैन से द करंट विल बी 15 15 के किसका वैल्यू है करंट का है करंट का वैल्यू है अगर ये करंट का वैल्यू है तो व्हाट आई कैन से व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज 10k के अक्रॉस कितना आ जाएगा the 10k potential across 10k is 14.3 divided by 15k into 10k which is 9.53 so this is how we can proceed for the question है ना unnecessary कुछ भी लगाने की कोशिश न करें keep analysis as simple as possible किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एनी डाउट इन क्वेश्चन एनी डाउट एनी डाउट इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज या नहीं हो तो आप लिखिए ना तो हम आगे बढ़ें फिर नो ओके फाइन चलो अगर आंसर नो है तो लेट्स ट्राई फ्यू मोर प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन बेटर वे व्हाट आई एम सेइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस this is 10 volt then this is 10 kilo ohm then this is diode D1 ID1 this is diode D2 this is 5 kilo ohm resistance and this is minus 10 volt ये है V output and it is given that V on for D1 and D2 is equivalent to 0.7 ये कब ऑन होते हैं जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो 0.7 वोल्ट तो आपको बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा व्हाट इज V आउटपुट करें जल्दी जरा इसको
Excuse. Okay. What is answer? Answer is no. Okay. सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग इन द सर्किट एंड आफ्टर दैट we will calculate the output voltage. The procedure of calculating output voltage is not difficult. It's very simple. I'm waiting for answer. जीरो वोल्ट. ओके. 0.7 बताया, जीरो बताया. ओके ओके. ठीक है. ट्राई करें आप. फिर मैं बताता हूँ. थोड़ा और ट्राई करें. देन आई कैन टेल यू द आंसर. ओके. 9.53. चलो ठीक है, मैं करके बताता हूँ इसको, है ना. लेट्स 10 वोल्ट. ओके फाइन. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी. तो एक काम करते हैं. सबसे पहले तो लेट्स मेक कॉपी ऑफ दिस. इसका कॉपी बना लिया हमने. एंड let's remove the diode. This is VP. This is VN. Let's remove the diode from the circuit. And this potential is also VP. And this potential is VN. VP2, VN2, VP1, VN1. So this is the idea for the circuit. Now, there is no closed loop in the circuit. That's why I can say the current in this is equivalent to 0. And V output is no current in the circuit. This is minus 10 volt. So what is the value of VP2? You can say this whole line is available at 10 volt. So VP2 is 10 volt. VP1
इज ऑल्सो एट 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट पे, तो ये भी 10 वोल्ट पे होगा। Vn1 is at 0 volt and Vn2 at -10 volt. ये मेरे पास टोटल वैल्यू आई है। तो व्हाट आई कैन से, द Vp2 minus Vn2 is equivalent to 20 volt open circuited voltage, while Vp1 minus Vn1 is 10 volt. ये दो कंडीशन आए हैं मेरे पास, 20 volt and 10 volt. So what I can say, which diode will conduct first? The first diode, D2 diode will conduct first. तो मैं क्या करता हूं इसको, let's remove this और इस डायोड को कर देता हूं ऑन। अब इसके बारे में टेस्ट लगाना बाकी है अभी, तो इस डायोड को कर देते हैं ऑन, और ऑन करेंगे तो वी कैन रिप्लेस इट बाय बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। Now we are interested in the Vp1 and Vp2. अब जरा ध्यान से देखें, देयर इज वन क्लोज लूप इन द सर्किट। देखो इस डायरेक्शन में क्लोज लूप बनता है। क्लोज लूप बनता है तो करंट कितना होगा, आई कैन कैलकुलेट दिस करंट आई, एंड आई इज इक्विवेलेंट टू 10 minus 0.7 plus 10 divided by 10 plus 5, 15K. So this is 19.3 divided by 15K. So I can say 19.3 divided by 15. The current is 1.28 मिली एम्पियर। और ये करंट अगर 1.28 मिली एम्पियर है तो आई कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10K के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है तो कितना हो जाएगा, जहां से करंट एंटर करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव, कितना हो जाएगा देखो 1.28 इंटू 10 इज 12.8। और अप्लाई 10 वोल्ट किया था, 10 वोल्ट में से 12.8 ड्रॉप हुआ तो यहां का पोटेंशियल कितना आया, -2.8। तो Vp माइनस Vn का वैल्यू हुआ नेगेटिव, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुआ तो व्हाट आई कैन से दैट डायोड D1 इज नॉट कंडक्टिंग, ये सर्किट में कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है और D1 अगर कंडक्ट कर रहा है तो कितना होगा, यहां का पोटेंशियल हमने निकाल लिया कितना, -2.8, और यहां का पोटेंशियल देखो वी आर गोइंग प्लस टू माइनस, तो -2.8 -2.8 minus 0.7 is -3.5. So what is answer for the question? The output voltage will be minus of 3.5. देखें जरा, ये पोटेंशियल था -2.8, 2.8 में -0.7 और जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, -3.5. So answer for this question is -3.5 वोल्ट। थोड़ा ध्यान से आप एनालाइज करें, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, बट यस गुड क्वेश्चन। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। पार्थ थोड़ा गड़बड़ हो गया, जूही पटेल का भी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं, देयर इज नो इश्यू। यस क्लियर है। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, मैं इसको फिर से, है ना, और आप पूछ भी सकते हैं, मतलब अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कहीं डाउट आता है। इसको रिपीट करना चाहिए या नॉट रिक्वायर्ड, रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट? ओके, आई कैन रिपीट इट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ये पता करना है कि सबसे पहले ये पता करना है कि डायोड, कितने डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों डायोड को कर दिया आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। नाउ बस मैंने सर्किट सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान उसको लिखा है, वो बेसिक जो कन्वेंशनल केवीएल केसीएल है उसको नहीं लिखा है, बाकी आप उनको भी लगाएंगे तो आंसर आएंगे। तो हमने देखा कि पहले डायोड को ओपन किया, दूसरे डायोड को भी ओपन किया, और बड़ा ही आसान तरीके से हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो डायोड D2 के लिए आया 20 और D1 के लिए आया 10।
तो हमने क्या देखा कि डायोड D1 कंडक्ट करेगा, और जो डायोड कंडक्ट करेगा वी कैन रिप्लेस दैट डायोड बाय 0.7 वोल्ट। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जरा इसको फिर से देखें, है ना, कि नाउ वी आर हैविंग दिस कंडीशन, a 10 volt, then we are having 10 kilo, that is VP1, VN1, then we are having a battery of 0.7 volt because this diode is conducting, then we are having 5 kilo ohm resistance, then we are having minus 10 volt, and this is V output। मुझे V output निकालना है। अब मेरा आपसे, है ना, हमने कैसे सॉल्व किया है इसको, व्हाट आई कैन से, देयर विल बी करंट इन दिस सर्किट, इस डायरेक्शन में एक करंट मिलेगा, है ना, देयर विल बी अ करंट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट मिला आपको। अब मैं बोल रहा हूं करंट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, लेट से दिस करंट इज आई, है ना, तो करंट का वैल्यू कितना होगा, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट, और वेन एवर वी आर गोइंग प्लस टू माइनस, पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, माइनस 0.7, और ये कितना है -10, तो ये हो जाएगा +10, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना आया 15 के। तो यहां से देखा द वैल्यू ऑफ करंट इज 1.28 मिली एम्पियर, तो करंट का वैल्यू आया 1.28 मिली एम्पियर। अब आप देखें कि 1.28 मिली एम्पियर करंट 10 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसका होगा 12.8, 1.8 मिली एम्पियर इंटू 10 के इज 12.8। अप्लाई किया था आपने 10 वोल्ट, और यू आर गोइंग प्लस टू माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप ही हुआ है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.8 वोल्ट। अब Vp का वैल्यू आया -2.8, Vn का वैल्यू आया 0, तो Vp माइनस Vn इज व्हाट, Vp माइनस Vn इज नेगेटिव नंबर, लेस देन 0, और लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, इसके ओपन सर्किट टेस्ट निकाल लिया। अब अगर नॉट कंडक्टिंग है तो दिस सर्किट इज करेक्ट। अब क्या देखें, -2.8, और अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और कितने से डिक्रीज होगा, -2.8 माइनस ऑफ 0.7 विच कम आउट टू बी माइनस ऑफ 3.5। तो दिस इज द एनालिसिस, है ना, तो बहुत ज्यादा कुछ केवीएल केसीएल लगाने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक एनालिसिस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप अब क्लियर हो गया आपको। कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, क्लियर, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं, आसान होंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो करते हैं एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर गेट आपसे पूछे हुए हैं, एंड दीज आर द क्वेश्चंस, है ना। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गेट 2016, it is given that V on for the diode is 0.7 volt. V on for the diode is 0.7 volt. जब डायोड ऑन होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट। This is 2 volt. Then two kilo, then 6 kilo, and a diode is connected. A diode is connected like this. तो आपको बोला है व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस करंट आई, इस करंट का वैल्यू कितना है ना, इन मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में करंट का वैल्यू बताना है। फिर लेट्स टेक
करें आप क्वेश्चन को, चलो इसको ही सॉल्व करो, उसके बाद अगला देखते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शंस नहीं दिए हैं इसमें। ओके, 1.3 मिली एम्पियर। Okay, what if two diodes have same open circuit? Okay, you can replace it by on diode, है ना? दोनों का अगर ओपन सर्किट वोल्टेज सेम आ रहा है तो आप दोनों को किससे रिप्लेस कर दें? ऑन से रिप्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.33 मिली एम्पियर। ओके, क्या करेंगे? लेट्स रिप्लेस दिस बाय ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से रिप्लेस किया आपने, दिस इज कंसिडर्ड एज वीपी, दिस इज कंसिडर्ड एज वीएन। तो क्या देखा आपने कि इफ आई कंसिडर दिस इज माय रेफरेंस, दिस पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, तो वीपी कितने पे आया? वीपी इज अवेलेबल एट 2 वोल्ट। एंड व्हाट इज करंट इनसाइड द सर्किट? द करंट इनसाइड द सर्किट इज आई, एंड वैल्यू ऑफ आई इज 2 डिवाइडेड बाय 8 के। तो वैल्यू ऑफ आई इज 1/4 मिली एम्पियर। तो 6K के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6, the potential drop across 6K is 6/4. And what is 6/4? It is 1.5 volt. So what I can say, this potential is 1.5 volt. तो VP आपके पास आया 2 वोल्ट पे और VN आया कितने पे? 1.5 वोल्ट पे। तो VP माइनस VN होना चाहिए था 0.7 से बड़ा ऑन होने के लिए, लेकिन VP माइनस VN का वैल्यू कितना आया? 0.5। 0.5 0.7 से बड़ा तो नहीं है। दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, मींस डायोड इज ऑफ। वो डायोड ऑफ है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट? द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्विवेलेंट टू 1/2/8, यानी 1/4 मिली एम्पियर। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस? The correct answer for this is 1/4 milliampere. Diode is not conducting, that's why the answer is 1/4 milliampere. Clear है? Yes, 0.25 milliampere is correct. 0.25 milliampere is correct. It's not 1/3, है ना? थोड़ा गलती कर गए आप, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's try few more problem based on the constant voltage drop model. Let's start with few more problem जो प्रीवियस ईयर गेट है, आपसे बनना भी चाहिए, बहुत ऑब्वियस, क्योंकि आसान प्रॉब्लम्स होते हैं। चलो देखते हैं। आई हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज दिस। आई एक्सपेक्ट कि सभी से बने ही है ना। This is 1 milliampere. A bridge is
A bridge is given. This is 2K, 3K, 4K, 6K. Fine. And a diode is connected with 1 kilo ohm resistance. A diode D is connected with 1 kilo ohm resistance. और आपसे पूछा है द करंट थ्रू 4 किलो ओम रेजिस्टेंस. अगर ये करंट है I, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? इट इज गिवन दैट V on इक्वल टू 0.7 वोल्ट. कि जब ये डायोड ऑन होता है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0.7 वोल्ट. गेट 2015 में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा है. एंड आई होप वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसका. करें जरा ट्राई. ओके, सो व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आंसर का वेट कर रहा हूं मैं ना, जल्दी आंसर दें. इट्स अ फोन. आंसर 0.6 मिली एम्पियर. पार्थ ने बताया है, यश ने बताया है, सयाली ने बताया है. ओके, लेट्स सी कितना आंसर आता है. 9/15 यानी 3/5. अच्छा, सभी का सेम ही है. 3/5 इज 0.6. ओके, मे बी 0.6 इज करेक्ट आंसर. इतने लोगों का एक साथ एक जैसा आंसर नहीं आ सकता. 0.6 गुड. 0.6 गुड. चलो देखते हैं, है ना. लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. हमने क्या पढ़ा है दैट अगर किसी ब्रिज में ओपन सर्किट टेस्ट लगाया आपने, है ना, और ओपन सर्किट टेस्ट लगाने से पहले भी कि सपोज दिस पोटेंशियल इज 2K, दिस इज 3K, 4K एंड 6K. अगर अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट सेम हो किसी ब्रिज में,
अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम हो, मीन्स 2 into 6 इज इक्वलेंट टू 4 into 3, है ना। तो ये कौन सा ब्रिज होगा? बैलेंस ब्रिज होगा। एंड बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या होता है कि दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, देन वी ए इज इक्वलेंट टू वी बी। तो ये ब्रिज कैसा था? बैलेंस ब्रिज था, और बैलेंस ब्रिज का कंडीशन हमने निकाल लिया वी ए वी बी के इक्वल है। तो अब मैं निकाल लेता हूं वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी। अब ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा। देखो ये है वी ए, ये है डायोड, इसको ओपन कर दिया, देन वी आर हैविंग दिस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, देन वी आर हैविंग वीबी, और वीबी को भी वी मान लो, और वीए को भी कितना अज्यूम कर लिया? वीए। नाउ व्हाट आई कैन से, दिस पोटेंशियल इज वीपी and this potential is Vn. Can we say this potential drop is what? 0 volt because of open circuited. तो Vp का वैल्यू भी आया V, Vn का वैल्यू भी आया V, तो Vp माइनस Vn इज 0। हम चाहते थे इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, लेकिन ये तो 0 आया। इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रांच, यहां कोई करंट नहीं मिला आपको, और यहां कोई करंट नहीं मिला, तो दिस इज जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको बोला है कि बताओ इसमें कितना करंट जाएगा I1, तो कितना होगा 1 मिली एम्पियर इंटू R2 विच इज 9, इट्स अ करंट डिवीजन रूल, डिवाइडेड बाय 9 + 6 is 15 equal to I. So what is value of current? 3/5. तो 0.6 जिन्होंने मिली एम्पियर निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इनका वैल्यू कुछ और होता, सपोज 1 2 होता, 5 होता, तो क्या करते? वीए वी भी निकाल लेते, इनको निकालना कहाँ डिफिकल्ट है ना। है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड दिस वैल्यूज। सो आई होप ये क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। सो नो डाउट, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का 0.6 आ गया था, बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इस कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। देखो एक क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया होगा पहले, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। लेट्स से द क्वेश्चन इज दिस। ओके, एक क्वेश्चन है, जिसको हम करते हैं, एंड क्वेश्चन इज दिस। कितने डायोड्स ऑन है उस सर्किट में, आपको ये बताना है। और क्वेश्चन थोड़ा सा आइडियल डायोड पे है, बट मुझे दिख गया तो हम कर लेते हैं उसको। द क्वेश्चन इज दिस इज अ 10 volt battery, then 1 kilo ohm resistance, this is 2 mark question in exam, this is diode D1, this is diode D2, this is 1 ohm। अच्छा, ये 1K नहीं है, 1 ohm ही दिया है ना, 1 ohm। then this is also 1 ohm, and we are having one diode, this is D3, and then a source of
5 एम्पियर। आपको बताना है हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग इन दिस सर्किट। इस सर्किट में कितने डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं ना, हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग, है ना, कि D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट कर रहा है, D3 या D1 D2 कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको बताना है। जरा करें और कोशिश करें कि एक बार क्वेश्चन लिख के वहीं इसका सॉल्यूशन हो जाए ना, बहुत सारे सर्किट नहीं बनाना है। ऑल डायोड्स आर आइडियल, है ना, सो D1 D2 D3 आर आइडियल डायोड्स। D1 D2 D3 आर आइडियल डायोड्स। वांट आंसर विद द मिनिमम कैलकुलेशन, है ना, ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट्स 2 मार्क क्वेश्चन। दो मार्क में भी नहीं पूछा हुआ, 1 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2006 1 मार्क क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। ओके, D1 D2 ऑन, ओके ओके, लॉट ऑफ आंसर्स, D1 D2 ऑन, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, कुछ आंसर्स आए हैं, है ना। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हाउ टू कैलकुलेट दिस, करते हैं स्टार्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, कि टू कैलकुलेट दिस, लेट्स रिप्लेस दिस डायोड्स बाय ओपन सर्किट। इसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया और इसको लिख दिया V1 VN1, ओके, सो ये था VP1 और ये था VN1। इसको भी आपने रिप्लेस किया ओपन सर्किट से, you can replace diode D2 by open circuit, and what you can say, this is VP2 and this is VN2. Now we can replace this by open circuit, this is VP3 and this is VN3, है ना, ये मेरे पास सर्किट आया। Now what I can say, पोटेंशियल कितना होगा, सो वी कैन से दैट इसमें एक क्लोज लूप बनता है, देखो ये क्लोज लूप बनता है, और क्लोज लूप बनता है तो कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वलेंट टू आई प्लस आई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, आई प्लस 5 इंटू 1, है ना।
I प्लस आई, क्योंकि इसमें आई करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई इंटू वन, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू वन, और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ आई इंटू फाइव। कर दिया हमने। सो व्हाट इज वैल्यू, 10 इज इक्वल टू 3i प्लस 5। सो आई इक्वल टू व्हाट, आई का वैल्यू आया 5/3, है ना। और जिस इंस्टेंट पे आई का वैल्यू 5/3 आता है, व्हाट वी कैन से दैट सारे पोटेंशियल हमको पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगा आपको, यू कैन से दिस पोटेंशियल इज 5/3 नाउ, ये पोटेंशियल का वैल्यू आया 5/3। तो ध्यान रखें, आपने अप्लाई किया था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट में से 5/3 ड्रॉप हुआ, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना आया, 10 माइनस 5/3। मैं यहां बना देता हूं डायोड, दिस इज D1, तो 10 माइनस 5/3 विच इज 30 माइनस 5, 25/3। और Vn कितने पे है, Vn है 0 पे। फाइन। दूसरा दूसरा कैलकुलेट करते हैं, Vp2 भी कितने पे आया, Vp2 आया Vp2 आया मेरे पास 5/3 पे, Vp2 आया 25/3 पे। ये यहां जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां भी होगा। और Vn2 कितने पे आया, देखो Vn2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि यहां भी सेकेंड 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा 5/3। तो यहां पोटेंशियल था 25/3 माइनस 5/3, तो यहां का पोटेंशियल कितना आया 20/3। तो ये किसके लिए आया, फॉर डायोड D2, Vp और Vn का वैल्यू। और डायोड D3 के लिए देखें, D3 के लिए Vn का वैल्यू आया है, डायोड D3 के लिए देखें, Vn का वैल्यू आया है 20/3 और Vp का वैल्यू आया है 0। यही आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन से, द Vp माइनस Vn फॉर डायोड D1 इज 25/3, इसके लिए होगा 5/3 और इसके लिए माइनस नेगेटिव होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पहले जो डायोड कंडक्ट करेगा वो कौन सा करेगा, D1 डायोड कंडक्ट करेगा। तो इसके बारे में तो मुझे समझ में आ गया कि D1 तो कैसा है, D1 ऑन है। D1 अगर ऑन है तो फिर इस एनालिसिस को हटा दें आप यहां से, कि इस एनालिसिस का काम हो गया। लेट्स रिमूव दिस एनालिसिस फ्रॉम द सर्किट। अब मुझे कैलकुलेट करना है किसके लिए, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन D2 एंड D3। अच्छा देखो फिर से, अगर दिस इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस, तो यहां का पोटेंशियल कितना आया 0, और यहां का पोटेंशियल 0 आया है। तो अब देखो, ये 5 एम्पियर करंट है, ये 5 एम्पियर दो पैरेलल ब्रांचेस में फ्लो होता है, 1 and 1, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, टर्मिनेशन पॉइंट इज ऑल्सो सेम, शॉर्ट सर्किटेड है। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2.5, है ना, 2.5 मिली एम्पियर करंट जाएगा, और यहां भी कितना होगा 2.5। चलो आ गया। अब देखें जरा, Vp माइनस Vn का वैल्यू कैसा आया, Vp माइनस Vn का वैल्यू आया नेगेटिव। Vp माइनस Vn का वैल्यू कैसा आया, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सो ये वैल्यू आया नेगेटिव। और यहां भी Vn माइनस Vp माइनस Vn का वैल्यू कैसा आया नेगेटिव। सो ओनली हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग, ओनली वन डायोड इज कंडक्टिंग इन द सर्किट। वो कौन सा डायोड है, D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है, बाकी दो डायोड कैसे हैं, ऑफ है। सो दिस इज द आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने भी दो डायोड ऑन बताए हैं वो थोड़ा सा गलती कर गए। क्यों गलती कर गए, क्योंकि उन्होंने एक ही बार टेस्ट लगा के आंसर निकालने की कोशिश की है कि सर इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो दो डायोड ऑन बता दिए। ऐसा ना करें आप, है ना। जिसके लिए Vp माइनस Vn का वैल्यू हाईएस्ट होगा वो कंडक्ट करेगा, तो है ना, दिस इज ऑन, और बाकी के लिए नेगेटिव आया मींस ऑफ। तो D1 इज ऑन, D2 D3 इज ऑफ। आप अगर चाहते हैं तो इसका आंसर में फिर से, तो केवल पार्थ का आंसर करेक्ट है, बाकी सभी का गड़बड़ हो गया आंसर। इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट वंस अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूं। जल्दी बताएं मुझे लिख के, रिपीट करना हो तो बताएं आप।
so that we can repeat it. Want any repetition for this problem? No. Okay. No repetition required. Okay. In call message. No. Okay, fine. No repetition is required. Okay. So now let's start with next model for analysis of diode circuit is known as piecewise linear model. अगला जो मॉडल है वो कौन सा है? The next model to analyze the diode circuit is known as piecewise linear analysis. है ना? जरा देखिए how to replace that into the circuit. उसको कैसे replace करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. Okay, the next model is piecewise linear. Piecewise linear model. So what I can say, what is piecewise linear model? This is piecewise linear model. Suppose we are having this type of characteristics. अभी भी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड. So this is ID, this is VP minus VN open circuited. This is diode. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक. इसका मतलब क्या हुआ कि ओके दिस डायोड कंडक्ट आफ्टर दिस पोटेंशियल, लेट्स से दिस इज 0.7 वोल्ट, है ना, या कुछ आप अज्यूम कर लें इसको, लेट्स से दिस इज VD0 and then you are having this characteristics. कांस्टेंट नहीं है, इस बार इस लाइन का कोई स्लोप है ना, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डायोड ऑन होगा तो देखो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ बैटरी और करंट वोल्टेज एक्सेस का जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा? द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना. सो व्हाट आई कैन से, द इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज VD0 in series with resistance RD. कि डायोड अगर कंडक्ट करेगा तो यू कैन रिप्लेस योर डायोड बाय दिस इक्विवेलेंट, है ना. और करंट अभी भी कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम एनोड टू कैथोड. तो ये किसका इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑन डायोड. अगर डायोड ऑन होगा तो दिस कंडीशन इज ट्रू. तो कितना लिख सकते हैं इसको कि भाई अगर मुझे डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है तो व्हाट आई कैन से, इट इज VD0 प्लस I इंटू RD, है ना. I इंटू RD इज इक्वल टू व्हाट? V. तो अगर मुझे वैल्यू निकालना है I का या ID का, तो व्हाट आई कैन से, ID इज इक्वल टू V आउटपुट माइनस VD0 डिवाइडेड बाय RD. तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/RD, है ना. तो दिस मॉडल इज नोन एज पीस वाइज लीनियर मॉडल, है ना. दिस मॉडल इज नोन एज पीस वाइज लीनियर मॉडल. और इसको इक्विवेलेंटली कैसे बता सकते हैं हम? यू कैन इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट दिस बाय
दिस इज VD0, दिस इज RD, और इस डायोड को मैं बोल देता हूं आइडियल डायोड, एंड दिस इज V आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड ऑन हुआ तो देखो यही आउटपुट मिल जाएगा आपको, VO इक्वल टू VD0 प्लस ID इंटू RD, और ये आइडियल डायोड है। अगर ये ऑफ हुआ तो आउटपुट विल बी ओपन सर्किटेड वन। सो हमने क्या देखा कि VD0 से पहले तो आपको करंट कितना मिलेगा, जीरो। सो इन दिस रेंज दिस इज ओपन सर्किटेड, और इसके बाद इस बिहेवियर को फॉलो करेगा। एंड दिस मॉडलिंग ऑफ डायोड इज नोन एज पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, अप्रोक्सीमेशन ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल मॉडल। तो है ना, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस सर्किट। एक आध क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन इज दिस, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स of a diode is given. The IV characteristics of the diode in the circuit is given by this. I is equivalent to V minus 0.7 divided by 500. ये कब की बात है? When V is greater than or equal to 0.7 volt. And when V is less than 0.7 volt, the current is 0 ampere. तो आपको बताना है what is current inside this circuit. This is 1K. This is V. तो आप V का वैल्यू भी बता दें, I का वैल्यू भी बता दें। दिस इज वैल्यू ऑफ I and this is 10 volt. तो what are the values of V and I? Try this question, है ना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें जरा कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इस बार? द कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन एज पीस वाइज लीनियर। देखो ये इक्वेशन दिखती है आपको, दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। द वर्टिकल एक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ओके, 6.2 मिली एम्पियर, वेरी गुड। 6.2 मिली एम्पियर इज मे बी करेक्ट आंसर।
बाकी लोगों से भी आंसर एक्सपेक्टेड है, जल्दी करके बताएं। पार्थ ने बताया 6.2 मिली एम्पियर। ओके, बाकी लोग? जल्दी बताएं भाई आंसर। 6.2 के अलावा 3.8। ओके, 3.8 वोल्ट। ओके, 6.3 एंड 3.8 वोल्ट। ओके, और देखते हैं, बाकी लोग भी बताएं। ओके, चलो मैं बताता हूं इसको, है ना। आपको दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स आई इक्वल टू, द कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन दिस इज आई, दिस इज वी। तो आई का वैल्यू 0.7 रखा, तब तक तो वैल्यू जीरो है ना, तब तक वैल्यू जीरो है। उसके बाद 1/500 स्लोप का एक लाइन है ना, मैंने इक्वेशन ड्रॉ किया इस लाइन का। दिस इज दिस इज v माइनस पॉइंट, दिस इज स्लोप लिख देता हूं इसका मैं। स्लोप इज 1/500। v का जो मल्टीपल है वो स्लोप 1/500। ठीक है। नाउ क्या पूछा है आपसे कि कोई पोटेंशियल है v, सम पोटेंशियल इज v, ये कोई पोटेंशियल है v, उस v पे बताना है मुझे कि कितना आउटपुट मिलेगा, करंट कितना मिलेगा ना। आई वांट द वैल्यू ऑफ करंट एट दिस पोटेंशियल। चलो लगाते हैं केवीएल। कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट प्लस आई प्लस वी इक्वल टू 0। करेक्ट है। और एक और बात ध्यान रखें कि यहाँ 500 किस में दिया है? ओम में दिया है, और ये किलो ओम में, तो सभी को किलो ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज किलो एंड दिस इज प्लस वी इक्वल टू 0। नाउ -10 प्लस, यहाँ केवीएल लगा के ये लिखा है मैंने ना। नाउ 10 इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ आई, तो 1000 टाइम्स ऑफ v minus 0.7 divided by 500 प्लस v। ठीक है, ये वैल्यू को रिप्लेस कर दिया आई में। सो यू कैन से दिस इज 2, दिस इज 1, तो कितना आया? 10 इज इक्वल टू 2v माइनस 1.4 प्लस v। सो 11.4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू v। तो इसका जो Q पॉइंट आया है, या जिस पॉइंट पे हम इसको ऑपरेट करेंगे, दैट इज 11.3 वोल्ट।
that is 11.3 volt. So I can say 11.3 divided by 3 is equivalent to what? 11.4, sorry. 11.4 divided by 3 is 3.8. So this value is 3.8 कि ये डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया है वो कितना है 3.8. और अगर ये पोटेंशियल 3.8 है तो इस करंट को निकालने के लिए यहाँ वैल्यू रख दो 3.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 500. तो ये करंट का वैल्यू आ जाएगा. सो 3.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 500 ये आया 6.2 मिली एम्पियर. सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? द करंट विल बी 6.2 मिली एम्पियर. सो दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड. ये किस पे प्रॉब्लम बेस्ड था? पीस वाइज लीनियर. अब मुझे है ना इसमें क्या चेक करना पड़ेगा? देखो अब क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं. मुझे इस डायोड के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज हमेशा 0.7 से ज्यादा होना चाहिए. देखो 0.7 से कम पे कंडक्ट नहीं करना है, तो हमेशा नहीं लगाना है. ये इसको ओपन सर्किट टेस्ट करो तो इसका ओपन सर्किट 10 आता है. 10.7 से ज्यादा है, इसीलिए हमने एनालिसिस लगाया है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ. इसमें कोई रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट है? एनी रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन और नॉट? जल्दी बताएं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक. नो? ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is known as clipper circuits. A diode circuit which clips the unwanted portion of a waveform or which clips the noise is known as clipper circuit, है ना? Which clips the unwanted portion of a waveform, or I can say we want to study diode as a function generator. Diode circuit is a function generator. Diode circuit as a function generator or clipper circuit. Or clipper circuit. So what is clipper circuit? Clipper circuit, we are having what? We are having diode, resistor and some DC sources. Inside clipper, you may have two types of clipper. One clipper is known as biased clipper and second clipper is known as unbiased clipper. So in biased clipper, we use battery inside the clipper circuit. So this is a clipper circuit which removes the unwanted portion of a waveform, or we can say we can use the clipper as a function generator, है ना? It will generate different functions. तो जरा देखते हैं how clipper circuit works, है ना? Let's say I have this, है ना? Basic clipper circuit देखते हैं. This is 1 kilo ohm resistance. This is one diode. This is my input waveform and this is output. अब यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है. ओके, यहां एक बात जिसको आपको याद रखना है कि पूरे क्लिपर सर्किट में, है ना, द रेंज ऑफ ऑपरेशन इज दिस.
ऐसा, या वी कैन से ऐसा। मतलब डायोड ब्रेकडाउन में नहीं जा रहा है ना, ब्रेकडाउन में जा रहा है तो पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा, तो डायोड ब्रेकडाउन में नहीं जा रहा है। डायोड कैसा है, लीनियर, उसकी रेंज में है, ब्रेकडाउन से पहले वाली रेंज में, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्स बायस वोल्टेज वेयर करंट इज इक्विवेलेंट टू जीरो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेंज। नाउ क्लिपर सर्किट को एनालाइज करते टाइम हम दो चीजें बनाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। What do we understand by transfer characteristics? A graph between V output and V input. We will draw a graph between V output and V input, ताकि हमको पता लग पाए कि आउटपुट की डिपेंडेंसी क्या है इनपुट के साथ। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वेव फॉर्म, है ना, जो कि बड़ा ही आसान पार्ट है। वेव फॉर्म एट आउटपुट फॉर गिवन इनपुट। एक गिवन इनपुट के लिए आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो एक क्लिपर को हम एनालाइज करके देखते हैं, है ना, क्लिपर सर्किट को एनालाइज करके देखते हैं। हाउ वी कैन स्टार्ट द क्लिपर। दिस इज योर सर्किट VIT, 1 kilo ohm resistance, एंड यू आर हैविंग वन डायोड, जिसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं किससे, ओपन सर्किट से। बहुत अच्छे। दिस कंसिडर्ड एज VP एंड दिस इज कंसिडर्ड एज VN। अब क्या देखें, ओपन सर्किट टेस्ट आपने लगाया, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि वेदर दिस डायोड इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग। तो आपने देखा कि नो क्लोज लूप इन द सर्किट, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 1 किलो ओम रेजिस्टेंस इज जीरो। तो क्या देखा कि यहां भी कितना पोटेंशियल आ जाएगा, VP इज इक्विवेलेंट टू VIT, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ VN, VN इज इक्विवेलेंट टू जीरो। तो VP माइनस VN ओपन सर्किटेड वोल्टेज, if this is greater than zero then diode will conduct। तो VP का वैल्यू VIT, VN का वैल्यू जीरो, तो VIT ग्रेटर देन जीरो होगा तब डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और जब लेस देन जीरो होगा तब कंडक्ट नहीं करेगा। और जब कंडक्ट डायोड नहीं करेगा तो ये कंडीशन ट्रू है। और इस कंडीशन में देखो आप, V आउटपुट किसके इक्वल है, फॉर दिस कंडीशन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1K इज जीरो, सो यू कैन से V आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू V इनपुट, है ना। तो ये कब की कंडीशन हुई, नाउ आई कैन divide my analysis in the two part. The first part is when input voltage is greater than zero, diode will conduct, और डायोड कंडक्ट करेगा तो you can replace it by short circuit, so you can say V output is equivalent to zero. And when VIT is less than zero, when diode will not conduct, है ना, this is condition of on diode। और आप तो डायोड के अक्रॉस ही आउटपुट ले रहे हो तो जीरो मिल जाएगा, और ये है ऑफ डायोड, तो आउटपुट किसके इक्वल मिलेगा, आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट। सो what is the transfer characteristics of this? I can say the transfer characteristics will be this is very important to draw this characteristics। आपके सारे conceptual जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे ना। तो हमने क्या देखा कि VIT का वैल्यू जब जीरो से बड़ा है, मींस इन दिस पोर्शन VIT is greater than zero, in this portion the output is zero, in this portion the output is zero, and when VIT is less than zero, V output is equivalent to V input। तो V output equal to V input is a line passing from origin, लेकिन t less than zero पे ही बनानी। तो this is the transfer characteristics in this range, V output is equivalent to V input। V output का वैल्यू किसके इक्वल हुआ, V input के इक्वल हुआ। नाउ अब एक बार जब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई तो यू कैन इजीली ड्रॉ द वेव फॉर्म। सपोज मेरे पास वेव फॉर्म था, दिस इज द वेव फॉर्म, ना, कोई ये वेव फॉर्म था। तो क्या देखा हमने कि दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स VIT
greater than 0 and this portion represents VIT less than 0। तो ले लो आप प्रोजेक्शन कि VIT ग्रेटर देन 0 पे आउटपुट कितना मिलेगा, द आउटपुट विल बी 0 ना। बड़ा सिंपल एग्जांपल है। एंड VIT लेस देन 0 पे V आउटपुट विल फॉलो द V इनपुट। देखो लेस देन 0 पे V आउटपुट V इनपुट को फॉलो करेगा। V आउटपुट V इनपुट को फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जब साइन जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो ये 0 से मैक्सिमम पे पहुंचा तो आउटपुट भी मैक्सिमम पे, एंड मैक्सिमम से 0 पे पहुंचेगा तो यू कैन से दिस इज ऑल्सो एट 0। तो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म। कौन सा क्लिपर हुआ, इसने पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर दिया। तो आपको ऐसे नाम से नहीं पूछा जाता कि पॉजिटिव क्लिपर का आउटपुट क्या होगा, नहीं, आपको ऐसे सर्किट पूछा जाता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज this is the half wave rectification circuit, or you can say this is a positive clipper. A clipper which clips the positive part of the waveform is known as positive clipper. तो हम देखेंगे biased clipper है ना, अच्छे खासे सर्किट लेके आएंगे क्योंकि इस पार्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बट यस, दिस इज द आइडिया टू एनालाइज अ क्लिपर सर्किट। कैसे एनालाइज करते हैं आप क्लिपर सर्किट में? आप सबसे पहले बनाए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे बनाएंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? बाय रिप्लेसिंग द डायोड बाय ओपन सर्किट। और देखें कि कब ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है तब ऑन होगा, और नहीं होगा तब ऑफ होगा। तो ये सर्किट बना लें फिर, है ना। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन के बाद ही आप वेवफॉर्म वाले पोर्शन पे आए, है ना, तब आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। अब इसमें अगर पूछा है कि व्हाट इज कंडक्शन टाइम, तो देखें जरा कि कंडक्शन एंगल कितना होगा इसके लिए। तो ये है पाई और ये है 2 पाई। तो कंडक्शन एंगल इज व्हाट, 2 पाई माइनस पाई। तो डायोड कितने टाइम तक कंडक्ट करेगा, पाई इंटरवल तक कंडक्ट करेगा, है ना। बात करेंगे इसके बारे में भी कल। ये आपको समझ में आया, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीपर सर्किट? इज इट क्लियर? यस। तो अगर इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीपर सर्किट क्लियर है तो इसके आगे का जो डिस्कशन है बायस्ड क्लीपर है या थोड़े से जो सर्किट है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, उनको हम कल डिस्कशन में लेके आते हैं, है ना। और आपका कोई भी डाउट हो तो फील फ्री, आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट जो कल हमने डिस्कस किया, जो आज हमने डिस्कस किया, उनमें कोई भी डाउट है आपका तो आप बेहिचक पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर। एनी डाउट रिगार्डिंग यस्टरडेज डिस्कशन? कल के डिस्कशन में और आज के डिस्कशन में आपका जो भी डाउट हो। तो अभी तक हमने किया है, सारे मॉडल्स पढ़े हैं डायोड के और उनको अप्रोच करने की कोशिश की है। तो आप भी कुछ प्रॉब्लम्स करें, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, है ना। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन टू द क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट का ये इंट्रोडक्शन था। एनी डाउट? एनी डाउट? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं, इस क्लीपर सर्किट को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।